So we were on question number 6. Question number 6 को solve करने के लिए we need a relationship that 1 centimeter is equal to 10 millimeter and 1 millimeter is equal to 1 by 10 of centimeter. Here both centimeters and millimeters are unit for measuring length. Whenever you have to measure anything in length, in terms of length, there you will use these two units, centimeter and millimeter. Okay, so let's begin with the question. Question 6 says that you have to express the following as centimeter using decimals. All the questions the questions are given in terms of millimeter, and you have to change that millimeter into centimeter. ठीक है? So we'll take up the question number A part. C and F part are not there in your syllabus. So we'll continue with part A. Part A is 2 mm. Okay. So while writing the question in your copy, you will write the relation as well, that 1 mm is equal to 1 by 10 centimeter. Box it up. Okay. This relation needs to be written in your copy every time you will solve the question. उसके बाद since 1 centimeter is equal to 1 by 10, 1 millimeter is equal to 1 by 10 centimeter, then 2 millimeter is equal to 2 into 1 by 10 centimeter. ठीक है? तो 2 by 10 करोगे आप, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो you will get 2 only. 2 by 10 को जब आप सॉल्व करोगे तो you will get 0.2. ठीक है? 2 by 10 को जब हमने फ्रैक्शंस को, अब हमें यहाँ पे डेसिमल में चेंज करना है. फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे कैसे? ये प्रोसेस हमने पिछली बार में देखा था. How will you change a fraction into decimal? ठीक है? तो इसको आप या तो 2 by 10 लिखा है तो इसको आप डायरेक्टली 0.2 लिख सकते हो. 0.2 centimeter. So this is the way you will solve the question. First of all, you will write the relation that 1 mm is equal to 1 by 10 centimeter. Then 2 mm is equal to 2 multiplied by 1 by 10 of centimeter. Then 2 by 10 will give you 0.2 centimeter. So as you can see कि हमने 2 mm से start किया था और हमने उसको change करके centimeter में कितना लिखा है? 0.2 centimeter. Okay. So this was your question. Question number A part. B part is not there. B part is also in the syllabus. So B part में the question is 30 mm. Again you will write the relation that 1 mm is equal to 10 centimeter. So 30 mm is equal to 30 multiplied by 1 by 10 centimeter. 30 ones will give you 30 only. 30 by 10 centimeter. जब आप 30 को 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आराम से डिवीजन जो है हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में यू कैन सी दैट 2 इज स्मॉलर दैन 10, यानी हमारी ये जो एक कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो यहाँ पे आपकी हमने पढ़ा था फ्रैक्शन चैप्टर में, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है. तो यहाँ पे 0.2 1 से कम है. लेकिन इस सेकेंड पार्ट में यू कैन सी दैट जो ये हमारा न्यूमरेटर है 30, इट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. सो वी कैन इजीली डिवाइड 30 by 10. तो आंसर आएगा 3. 10 3s will give you 30. सिंस क्वेश्चन में हमें डेसिमल पॉइंट के साथ लिखना है आंसर, तो आप 30 के बाद एक पॉइंट 0 लगा सकते हो. ठीक है? इफ कोई अगर ये नंबर दिया है 2, इसके आगे इसके बाद में यू कैन राइट 2 एज 2.0 और 2, दोनों का मीनिंग एक ही है. अगर किसी नंबर के बाद में आप डेसिमल लगा के यहाँ पे कितने भी जीरोस लिखते जाओ, उसका मीनिंग यही 2 ही रहेगा. लेकिन अगर नंबर के पहले आप पॉइंट के पहले अगर आप 0 लगा रहे हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा.
ठीक है, आई हैव टोल्ड दैट कि नंबर के बाद में पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगा के यू कैन राइट n नंबर्स ऑफ जीरो, बट नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगा के आप अगर जीरो लिख रहे हो तो आपके उस नंबर का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये अब अभी हम आगे की एक्सरसाइजेस जब करेंगे तो देखेंगे। सिंस 3 जो है वो के बाद we can put a decimal point and write the answer as 3.0 centimeter. So this is your question number B part. ठीक है, similarly you will solve E part. D part I am solving for you. E part is your homework, 162 है. E part is your homework. You may ask the question in the WhatsApp class if you are not able to solve the question. Right now I am taking question number D. ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी इज 4 सेंटीमीटर 2 mm, दोनों यूनिट्स आपको दी हैं, 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। ठीक है, व्हेन यू विल रीड द क्वेश्चन यू विल गेट टू नो दैट कि हमें जो आंसर है वो सेंटीमीटर में ही रखना है, क्योंकि इन दोनों न्यूमरल्स में जो 4 सेंटीमीटर है दैट इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, सो विल ओनली कन्वर्ट दिस 2 मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो ये 4 सेंटीमीटर है इट इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर्स, सो वी विल चेंज ओनली 2 mm इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इस तरह की कन्वर्जन्स अपनी जूनियर क्लासेस में कर रखी है कि दो अलग अलग यूनिट्स अगर दी हैं तो आप दोनों को चेंज कैसे करोगे। ठीक है, सो अगेन यू विल राइट द रिलेशन दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 do this correction. Okay. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, so we'll change 2 mm into सेंटीमीटर। अगेन ये इस रिलेशन के साथ हमने ये रिलेशन भी पढ़ा था दैट 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, तो इसको आप 4 सेंटीमीटर प्लस 2 mm भी लिख सकते हो। ठीक है, द गिवन क्वेश्चन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट आल्सो। तो 4 सेंटीमीटर को यू विल कीप इट एज इट इज, बदलना किसको है 2 mm को, तो लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1/10 centimeter. Okay, now 4 centimeter plus 2 multiplied by 1 will give you 2, and in denominator you have 10, तो 4 centimeter plus ये 2/10 हो जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 plus 0.2 सेंटीमीटर will give you 4.2 सेंटीमीटर। एक चीज और है, जब हम एक होल नंबर को और एक डेसिमल को ऐड करते हैं तो उनकी एडिशन कैसे होती है। अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यहाँ पे अगर सिर्फ 4 लिखा है तो आप डेसिमल पॉइंट लगा के यहाँ पे उसके जीरोस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, मेक श्योर कि डेसिमल पॉइंट नंबर के बाद लिखा हो, तब इन जीरोस को लगाने का या नहीं लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी जीरो को अगर आप नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट डाल के लगाओगे तो योर नंबर विल गेट चेंज। ठीक है, तो अगर हम जब भी एक होल नंबर की और एक डेसिमल की एडिशन को करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट के नीचे ही रहे। ठीक है, इस तरह से यू विल डू योर एडिशन। ठीक है, 0 + 2 विल गिव यू 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट और आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, देन यू विल राइट 4। दिस इज द वे यू विल राइट योर क्वेश्चन। अब आप इसको 4.20 पढ़ो या 4.2 पढ़ो, इस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन अगर यही 0 4 के आगे लगा होता तो दैट वुड हैव चेंज योर क्वेश्चन। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ, जब किसी हम होल नंबर को और एक डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं, मेक श्योर कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ऐड। कोई भी इस तरह से ऐड नहीं करेगा, ये इस तरह की एडिशन नहीं होगी।
क्योंकि फर्स्ट नंबर का डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, सेकंड नंबर का डेसिमल पॉइंट यहाँ पे। तो इस तरह से अगर यू विल ऐड देन यू विल गेट रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। मेक श्योर कि व्हेन यू आर एडिंग अ होल नंबर टू अ डेसिमल नंबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, आंसर में भी सेम पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए। तो दिस इज द वे यू विल डू द एडिशन ऑफ द डेसिमल नंबर। ओके okay, now we'll continue with question number 7. Question number 10, sorry. So first of all, I'll read the question for you. In this question, the length of Ramesh notebook is 9 centimeter 5 millimeter. What will be its length in centimeter? Again, जो question 6 में हमें करना था वही question हमें यहाँ given है, but statement के form में। रमेश है एक बच्चा जिसकी notebook है 9 centimeter 5 millimeter की, and in answer you have to tell the length of his notebook in terms of centimeter। यानी आपको जो वो 5 मिलीमीटर दिया है उसको चेंज करके आपको सेंटीमीटर में करना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक, length of Ramesh notebook is 9 centimeter 5 millimeter. This is the length of his notebook. उसके बाद you will write length of Ramesh notebook in centimeter. Centimeter में कैसे लिखोगे? 9 centimeter plus 5 mm. Then you will do your conversion, 9 centimeter plus 5 into 1 by 10 centimeter। जब आप ये 1 by 10 centimeter अपने conversion को लिखोगे then only you will change the unit as centimeter, ठीक है। क्योंकि हमने अभी रिलेशन पढ़ा है कि 1 mm is equal to 1 by 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपने mm को चेंज करके सेंटीमीटर में लिखा है तो आप 1 by 10 लिखोगे, या फिर अगर आप 1 by 10 के टर्म्स में क्वेश्चन को लिख रहे हो तो आप mm की जगह सीधा सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। तो यू विल राइट 5 into 1 by 10 सेंटीमीटर। अगेन ये 9 सेंटीमीटर प्लस 5 वन जा विल गिव यू 5 और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। 9 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर। अगेन हम एडिशन देखेंगे, 9 के बाद आप पॉइंट लगाओ, ठीक है। 0 क्योंकि 9 एक कंप्लीट नंबर दिख रहा है, 0.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, विल डू द एडिशन, 0 plus 5 will give you 5, then there is point again, 9 plus 0 will give you 9, तो your answer will be 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लीज डोंट फॉरगेट कि आपको पॉइंट के नीचे, डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है। इन आंसर आल्सो यू हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट जस्ट अंडर द डेसिमल पॉइंट। अगर आप एक भी जीरो इधर उधर करोगे योर आंसर विल बी इनकरेक्ट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 10th का ए पार्ट। नाउ विल टेक अप द बी पार्ट। So question number 10 का B part is your homework. You have to convert 65 mm into centimeters, but you have to write the statement as well. दोनों चीजें आपको करनी है। तो with this we have finished our exercise 8.1. हमने अपनी exercise 8.1 को finish कर लिया। Now we will continue further with the chapter. The next topic is 100. ठीक है, अभी तक हमने डेसिमल को 1/10 के पार्ट तक पढ़ा। हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था, यहाँ पे 1, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, इस तरह से। फिर हमने यहाँ इस तरह जब हम बढ़े तो हमने पढ़ा टेंथ इज डिफरेंट फ्रॉम टेंस। उसके बाद नाउ वी विल स्टडी अबाउट 100, ठीक है। जैसे टेंथ जो था वो टेंस से डिफरेंस था, वैसे ही जो 100 था वो 100 से डिफरेंस होगा। टेंथ में हमने क्या पढ़ा था 1/10, तो सिमिलरली 100 में क्या पढ़ेंगे हम लोग 1/100। यहाँ पे वंस ही था, ठीक है। अभी किसी ने ये पूछा नहीं कि मैम आपने वंस को तो वंस लिखा, टेंथ यहाँ पे आपने जैसे टेंस का 10 कर दिया, 100 का 100 कर दिया, तो वंस का क्या होगा? तो वंस का इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि 1 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो
जब आपने टेंस लिखा या जब आपने 100 लिखा, तो ये जब हम 10th और 100 कर रहे हैं तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 10th को 10th बना रहे हैं तो 1/10 लिख रहे हैं, जब हम 100 का 100th बना रहे हैं तो 1/100 लिख रहे हैं। उसी तरह से अगर हमने वंस का बनाया होता कुछ या 1th कर दिया होता तो हम उसमें क्या करते, 1/1 लिखते। 1/1 लिखने पे आपको आंसर क्या मिलता, 1 ही मिलता। तो 1 और 1 में कोई डिफरेंस नहीं था, इसीलिए हमने 1 को छोड़ दिया। हमने किससे कंटिन्यू किया, हमने 10th से कंटिन्यू किया। इसीलिए जो बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, 10 ही होता है डेसिमल पॉइंट का। ठीक है, इतना समझ में आया। वंस के बाद हमने यहाँ पे 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 1 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको क्वेश्चन पे 1 ही मिलेगा, तो 1 उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जब उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं, तो इसलिए हमने उसको अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में भी नहीं लिखा। फिर जब हमने 10th को देखा, 10th में क्या था, 10 था। आप 1/10 कर सकते हो, आप 1/100 कर सकते हो, आप कंटिन्यू करोगे तो 1/1000 भी करोगे, उसको 1000 पढ़ते हैं। इसी तरह से ये चार्ट आगे कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस एक्सरसाइज में 8.2 में 100th को डील करेंगे। ठीक है, बाकी सारा कंसेप्ट फ्रैक्शन से डेसिमल को कैसे डेसिमल में या डेसिमल से फ्रैक्शन में करने में सेम है। बस पॉइंट क्या है, बस डिफरेंस क्या है कि अब आपको एक 0 और मिल जाएगा, बाकी सारा कंसेप्ट इज सेम। ठीक है, यस मैम, ओके मैम, ओके। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी सब सेम है। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 8। We are doing example 8. It is on page number 172. The question is write as fraction in lowest term. आपको decimal point दिए हैं, दो चीजें करनी है। सबसे पहले you have to change the fraction into decimal into fraction. फिर उस fraction को आपको उसके lowest term में, lowest term का मतलब है simplest form में reduce करना है। ठीक है, lowest terms here means simplest form. So I am taking the first part में 0.04। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये अगर कंफ्यूजन हो रही है कि मैं नीचे 10 डालूं डिनोमिनेटर में इसको बदलने के लिए या फिर 100 डालूं, तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स दिखते हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, 1 2 4 और 0। ठीक है, डिजिट यहाँ पे कितने हैं, 2, तो डिनोमिनेटर में 0 कितने लगेंगे, 2। जितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद उतने ही आपके जीरोस लगते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ 0.4 होता तो ये आपका बनता 4/10, लेकिन अगर यहाँ पे 0.04 है तो वो बनेगा आपका 4/100। ठीक है, तो यू विल राइट इट एज 4/100। अब रिड्यूस करेंगे हम इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कैसे रिड्यूस करेंगे, 4 और 100 का कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 4 ही होगा। ठीक है, तो 4 1 टाइम्स और ये 25 2 शायद होगा कॉमन फैक्टर, दैट यू कैन चेक। तो आप इसको रिड्यूस करोगे तो वो 1 टाइम्स जाएगा, 4 1 इज 4 एंड 4 25 टाइम्स विल गिव यू 100। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे तो 0 से सी वाला बता दीजिए। मैं बता रही हूँ बेटा। अच्छा, सी वाला बताओ। सी में क्वेश्चन है, अच्छा इसमें 100 वैल्यू है, ठीक, 0.342। ठीक है, पॉइंट के बाद यू कैन से सी दैट कि यहाँ पे 3 0 है 0.342 में, तो यहाँ पे 342 पॉइंट्स को हटा के आप सिंपली जो नंबर गिवन है पॉइंट के बाद वो लिखोगे। नीचे डिनोमिनेटर में क्या डालोगे, 1 जीरोस है, नंबर है डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3, कितने 0 1 2 3। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही जीरोस आपके डिनोमिनेटर में लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यू विल राइट 342। अब हमें इनका कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा, इनका कॉमन फैक्टर होगा 2। ठीक है, तो 342/1000 को यू विल डिवाइड बाय 2। ठीक है,
तो 3 1 जा 3, ऊपर से 4 आएगा, 2 7 जा 14 और 2 ये 1 जा 2 और नीचे 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। ये हो गया आपका रिड्यूस होके फ्रैक्शन। अब ये जो मैंने 1 मिनट में आपको डिवीजन कर दिया, ये आपको आएगी प्रैक्टिस से। जितने भी क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप नेट पे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर डिवीजन उसको डाल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो आपको फिर ये नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में बैठ के, है ना। जितनी क्विक मैथ्स अपनी अगर इम्प्रूव करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो डिवीजन जो है वो ओरली हो जाएगी एंड इट विल सेव योर टाइम, ठीक है। एक चीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो शायद आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, कि नंबर को देख के आपको पता चल जाए कि ये किससे डिविजिबल होगा। जिसने उस पे कमांड कर ली आधा काम उसका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वरना आप हिट एंड ट्रायल करते रहोगे कि अच्छा ये 2 से जाएगा कि 3 से जाएगा कि 4 से जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स कम टू एक्सरसाइज डायरेक्टली। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है टेबल वाला, है ना। इस टेबल में मैं आपको पहले बता दूं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। ये जो एक टेबल आपका बना है जिसमें ये डॉट 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 जो भी है, ये आपका एक वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें जो खाने बने हैं वो आप देख सकते हो, जो उसमें ब्लॉक्स बने हैं वो 10 है। तो वो 10 को अगर ऊपर से नीचे 1 2 3 4 इस तरह से 10 पूरे डॉट्स लग चुके हैं तो यानी आपका वो 10 हो जाएगा, ठीक। और अगर ये 1 2 3 4 5 इस तरह से हो रहा है तो वो आपका 100 को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या मुझे कोई ये बताएगा कि अगर हम वंस पढ़ रहे हैं, वंस ज्यादा है कि टेंस ज्यादा है? टेंथ ज्यादा है, वेरी गुड। वंस ज्यादा है कि 100 ज्यादा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। और अब टेंस ज्यादा है कि वंस ज्यादा है? ठीक है, वेरी गुड, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड। किसने कहा वंस? ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये टेबल वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है कैसे करना है। मैं एक पार्ट आपको करके बताती हूँ, बाकी क्योंकि इसमें ड्रॉ करना है बार बार, तो मैं आई कैन नॉट ड्रॉ अगेन एंड अगेन द सेम पिक्चर ऑन दी बोर्ड। तो मैं एक क्वेश्चन आपको एक पार्ट बता दूँ, रेस्ट ऑफ ऑल विल यू डू इट विद योरसेल्फ? 2 पार्ट आप खुद से कर लोगे ना? हाँ बेटा, बनाना पड़ेगा। ये 10 लिख दे रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं ये 100 लिख दे रही हूँ, ठीक। टेबल अच्छे से काम बनाना और ये आपका नंबर है, ठीक है। तो पहले ब्लॉक में आप देख सकते हो कि पूरा जो बॉक्स है वो हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे आपको जो ब्लॉक है वो खाली दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे वंस क्या, जब ब्लॉक कंप्लीट ही नहीं हो पाया तो क्या वंस की वैल्यू रखेंगे हम? नहीं रखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। टेंस आपको देखने हैं कितनी है, कितनी लाइंस 10 की कंप्लीट हुई है। तो क्लियरली आप देख सकते हो, वेरी गुड, 2 लाइंस हैं जो वो 10 की कंप्लीट हुई है। और 100 कितना है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर क्या बनेगा आपका? वंस की कोई ठीक है, इसको मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। 0 ऐसे ही रहेगा, 2 के साथ यू विल मल्टीप्लाई 10, है ना, प्लस 6 के साथ आपने 100 को यहाँ पे 100, ये यहाँ पे है, ये 10 है यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। 2 को आप करते हो 10 से डिवाइड, 6 को आप करते हो 100 से डिवाइड, ठीक है। तो 0 प्लस 0.2 प्लस 0.06, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद आप कितना लिखोगे? 0.06। अब इसको ऐड करके भी मैं दिखाती हूँ कैसे 0.26 आंसर आया है ना। 0
0 है, इसके बाद हमें कितने भी 0 लगाएंगे इट विल मेक नो डिफरेंस। फिर 0 पॉइंट के नीचे 0.2, फिर 0 पॉइंट के नीचे 0.06 और इन सबको करेंगे हम ऐड। 0 + 6 विल गिव यू 6, 0 + 2 + 0 विल गिव यू 2 और 0 + 0 + 0 विल गिव यू 0। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें क्लास? क्या डाउट है? नो मैम। बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो। ब्लॉक्स में कंफ्यूज मत होना। अगर ये आपका पूरा ब्लॉक डॉट से भरा है तब आप उसको वंस में कैलकुलेट करोगे। ये पूरी लाइन 10 से भरी है तो वो आपको 10th में काउंट करनी है, 10th में, 10th में नहीं 10th में। ठीक है, उसी को देख के सबसे पहले आप अपना टेबल भरना अपनी प्रैक्टिस के लिए या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 10th के ऊपर 10 लिखो, 100 के 1/10 लिखना है और 100 के ऊपर 1/100। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ऐड करना है। एडिशन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इट वुड बी बेटर कि आप ये वाला तरीका करो। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, फिर बाद में उसको ऐड करके देखो कि क्या हमने सही एडिशन की है। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया, सारा काम फेयर कॉपी में होगा। रफ कॉपी कहाँ से आ जाती है भाई आपके दिमाग में? क्यों करना है? अगर आप अपनी फेयर कॉपी में भी रफ वर्क यूज कर रहे हो तो यहाँ मार्जिन ड्रॉ करके यू कैन राइट रफ वर्क और अपना काम कर सकते हो, है ना। नीटनेस मैटर करती है लेकिन उससे ज्यादा मैटर करती है आपकी प्रैक्टिस। तो सारा काम आपकी मैथ्स की फेयर कॉपी में ही होगा, चाहे वो क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप क्लास में पूछा हो या किसी भी क्लास में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको करना है, हो जाएगा। क्लास 6 यस मैम। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है अपना होमवर्क आज भेजने के लिए? जस्ट रेज योर हैंड। बस 3 ही हाथ उठे हैं। ठीक है ठीक है, आई एम टेकिंग द पिक्चर और जो बाद में अपना प्रॉमिस नहीं रखेगा उसको फिर आई सी इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, आई विल सी नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, द प्रीवियस क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी जो क्वेश्चन होमवर्क में मिले दैट आल्सो यू हैव टू डू। ठीक है, यस अंकित, यस अंकित। क्या बेटा? हाँ, आप भी भेजते हो। ठीक है, अगर मैंने किसी का नाम मिस कर दिया दैट डजंट मीन कि वो भेजता है। सारा जो काम है आपके ग्रुप में आता है तो एवरीबॉडी कैन सी कि कौन कौन भेजता है। ठीक है, तो विल कंटिन्यू फर्दर विद द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।